Namaste Gurukulians, how are you students? Hope you will be fine. Myself Subhas. Today we will study class 12th accountancy and chapter 4th retirement and death of a partner. Today we will finish this chapter. This is the last video of this chapter. We have discussed retirement. At the time of retirement of a partner, calculation of new profit sharing ratio, gaining ratio, revaluation of assets and liabilities, accounting treatment of goodwill, accounting treatment of undistributed profits and losses we have discussed. Next topic is adjustment of capital accounts. So this topic is deleted from the syllabus. Now we will not do this. And one more topic, loan account, preparation of loan account of retiring partner. It is also removed from the syllabus. So we will also not do this portion. Adjustment of capitals and retiring partners loan account. We will not do because these topics are deleted from the syllabus by CBSE. Now the last topic is death of a partner. At the time of death of a partner, earlier we are to prepare the deceased partner capital account. So it is also deleted from the syllabus. Only we have to calculate the share in profit of deceased partner. So when a partner dies from the firm, certain amounts are to be paid to his legal representative, to his nominee, जिसको हम एग्जीक्यूटर भी बोलते हैं. जब भी एक पार्टनर की डेथ होती है तो उसके एग्जीक्यूटर को बहुत सारे अमाउंट पे करने होते हैं. तो सच अमाउंट्स इंक्लूड हिज बैलेंस ऑफ कैपिटल, हिज शेयर इन रिजर्व्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, हिज शेयर इन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, हिज शेयर इन गुडविल, हिज शेयर इन प्रॉफिट्स टिल द डेट ऑफ हिज डेथ. क्योंकि बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, तो 31 मार्च तक का तो प्रॉफिट उसको मिल चुका है. उसके बाद जब डेथ होगी 31 मार्च से लेकर डेथ तक का जो पीरियड है, फॉर दैट पीरियड ही विल बी पेड शेयर इन प्रॉफिट्स और लॉस. सो एज पर न्यू सिलेबस वी आर टू कैलकुलेट ओनली द शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर in profit on the date of his death. Share of profit of deceased partner at the time of death. So we will calculate the deceased partner's share at the time of his death. So to calculate this share there are two methods. One is time basis and second is sales basis. This is also called as turnover basis. Turnover basis. So these are two methods to calculate the share of deceased partner. And we also learned the journal entry when the share of deceased partner is paid to his legal representative. So we saw it to the credit of deceased partner capital account. So entry for this to record the share of deceased partner capital. Again there are two ways. दो तरह से हम इसकी एंट्री करते हैं. एक तो है रिकॉर्डिंग, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेन्स द सेम. व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो does not change.
अब मान लीजिए 3 पार्टनर हैं ABC, रेशियो 3:1, B डाइड, नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। तो इन सच सिचुएशन न्यू रेशो बिटवीन A एंड C विल बी 3:1। तो कोई चेंज नहीं आया, पहले भी 3:1 थी, अब भी 3:1। तो इन सच सिचुएशन व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट चेंज, एंट्री फॉर शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर विल बी, हम इसको डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में मेंशन करते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मान लीजिए डिसीज पार्टनर बी है, तो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस के साथ हमने सस्पेंस वर्ड यूज क्यों किया है? क्योंकि इस प्रॉफिट में सस्पेंस है। दिस इज नॉट द एक्यूरेट प्रॉफिट। एक्यूरेट प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन बुक्स आर क्लोज्ड। तो डेथ की डेट को हम बुक्स क्लोज नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक एस्टिमेट है, इसमें थोड़ा सस्पेंस है, दैट्स व्हाई वी यूजेस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो ये जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके कैपिटल की क्रेडिट में चला जाएगा, तो ये एंट्री होगी। ये तब था जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज ना हो। सेकेंड है व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंजेस, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंजेस। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी, मान लीजिए इसी एग्जांपल ले, 3 पार्टनर्स ABC, रेशो है 3:1, B डाइड। नाउ A एंड C डिसाइडेड दैट दे विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। ये ओल्ड रेशो थी, ये न्यू रेशो, तो B की डेथ होगी। अगर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है तो तब हम प्रॉफिट की एंट्री उसी तरह करेंगे जैसे गुडविल की एंट्री करते थे। गुडविल की एंट्री क्या थी? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज, वो रिटायरिंग था, यहाँ डिसीज ले लो जिसकी डेथ होगी। तो व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंजेस, एंट्री विल बी रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो प्रॉफिट है ऑन द डेट ऑफ डेथ, उसमें डिसीज पार्टनर का शेयर निकालो, उसको कर दो क्रेडिट, और जो बाकी पार्टनर है उनको कर दो डेबिट गेनिंग रेशियो। इफ इन द क्वेश्चन ABC आर पार्टनर्स, B डाइड, एंट्री विल बी A's capital account debit, C's capital account debit to B's capital account, and A and C's capital account will be debited in gaining ratio. Okay, these are the journal entries. Now there are 2 methods to calculate share in profit at the time of death of a partner. One is time basis, second is sales basis या turnover basis. तो first है time basis. जो time basis है, we will calculate the profit of the period for which he remains as a partner from the last balance sheet on the basis of previous year profit or previous few years average profits. अब मान लीजिए हम बुक्स क्लोज करते हैं 31 मार्च को, एक पार्टनर की डेथ हुई 30 जून को, 3 मंथ्स के बाद हुई, अप्रैल मई जून। तो उस 3 मंथ्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए या तो हम पिछले साल के प्रॉफिट्स के बेसिस पर निकाल लें, पिछले साल जितना प्रॉफिट्स था उसका डेटा हमारे पास है, तो उसमें 3 मंथ्स का कितना होगा इंटू 3/12, या फिर पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट्स की एवरेज ले लें, पिछले 4 सालों की एवरेज निकाल के 3 मंथ्स का ले लें, या पिछले 5 की एवरेज निकाल के उसका 3 मंथ्स ले लें। तो इन दिस वे वी विल कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ डिजीज पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और एवरेज ऑफ प्रीवियस
few years profit. See the question. So this is first method, time basis. Open your book, students. Open page number 5.74, illustration 58. This is 58th illustration, page 5.74. A, B, C are partners in a firm whose books are closed on 31st March each year. 3 partners हैं, 31st मार्च को बुक्स क्लोज होती हैं. A died on 30th June 2018. A की डेथ होगी 30 जून को. And according to the agreement, the share of profit of a deceased partner up to the date of death is to be calculated on the basis of the average profit of last 5 years. पिछले 5 सालों के एवरेज के बेसिस पे कैलकुलेट करना है. नेट प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 years हैव बीन गिवन है, तो कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट. एट द प्रॉफिट्स ऑफ 5 years वो हैं 2014 में प्रॉफिट है 14,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000, ये 2016 का प्रॉफिट है. और 2017 में लॉस है 10,000 का, लॉस लेस कर दो. और 2018 का प्रॉफिट है 16,000 प्लस 16,000 डिवाइडेड बाई 5. 5 साल के प्रॉफिट है, लॉस है तो लेस कर दो, डिवाइडेड बाई 5. तो इट विल बी 54,000 टोटल डिवाइडेड बाई 5. तो एवरेज प्रॉफिट विल बी 10,800. दिस इज एवरेज प्रॉफिट. कैलकुलेट ए शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द date of death and pass necessary journal entries assuming there is no change in profit sharing ratio. B, there is a change in profit sharing ratio of remaining partners, new ratio being 3:2. So in this question profit sharing ratio is not given. When profit sharing ratio is not given, then profits will be distributed in equal ratio. So in the question there are 3 partners A, B, C. So profit sharing ratio is not given, then they were distributing equally. Now A died, first partner, and new ratio between B and C will be 3:2. तो 2 सिचुएशन है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होती, दूसरा चेंज होती है. तो आप प्रॉफिट की एंट्री कीजिए. तो इसमें जो प्रॉफिट्स हैं पिछले 5 सालों के निकाल के हमने एवरेज निकाल ली 10,800. तो दिस इज द प्रॉफिट ऑफ 1 ईयर ऑन एवरेज बेसिस. अब जो ए की डेथ हुई है वो 30th जून को हुई है, पिछली बैलेंस शीट तक का डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है. तो हाउ मैनी पीरियड पास्ट? 31 मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स तक पार्टनर रहा. तो इसमें जो ए का शेयर होगा, ए शेयर, वो होगा प्रॉफिट फॉर 1 ईयर ऑन एवरेज बेसिस 10,800. ये 1 साल का है. ए पार्टनर रहा 3 मंथ्स तक, अप्रैल, मई, जून, तो 3 मंथ्स का कितना होगा इंटू 3/12. तो दिस इज द प्रॉफिट फॉर 3 मंथ्स ऑफ द फर्म. नाउ गिव ए शेयर, ए का शेयर 1/3 है तो इंटू 1/3. इट विल बी 900. तो ए शेयर इन प्रॉफिट इज 900. अब एंट्री, यहाँ 2 केसेस हैं. फर्स्ट है व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डज नॉट चेंज. जब रेशो चेंज नहीं हो रही तो एंट्री क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट. ए का शेयर है 900, तो वी विल रिकॉर्ड हियर एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड फर्स्ट केस लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 900 to deceased partner capital account. Deceased partner is A, so to A's capital account.
900. This is the entry of profit in case of A when profit sharing ratio does not change. B और C की equal ही रहेगी. Here second case is given when there is a change in profit sharing ratio. B और C में जो नई रेशो होगी वो 3:2 होगी. तो उस केस में प्रॉफिट के लिए एंट्री है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. कंटिन्यूइंग आर B एंड C, तो एंट्री विल बी केस 2. B is capital account debit, C is capital account debit, 2 डिसीज पार्टनर जिसकी डेथ हुई है वो A है, तो 2 A's कैपिटल अकाउंट. तो क्रेडिट A's कैपिटल बाय हिज शेयर इन प्रॉफिट दैट इज 900 एंड डेबिट B एंड C इन गेनिंग रेशियो. तो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो. ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है. गेनिंग रेशियो के लिए फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. तो A का शेयर होगा न्यू शेयर 3/5 माइनस 1/3, 15, 9 minus 5, 4/15. And this is B's here, not A. B's. और C गेन करेगा न्यू शेयर 2/5 माइनस ओल्ड 1/3, 15. तो 3 into 2 6 minus 5 1/15. So gaining ratio is 4:1. तो यू विल डेबिट B एंड C's कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशियो 4:1. तो 4:1 में टोटल इज 5, तो 5 से डिवाइड करोगे तो C का शेयर आ जाएगा. डिवाइडेड बाई 5, 4 180 और 4 टाइम्स 720, टोटल 900. तो दिस विल बी द एंट्री ऑफ प्रॉफिट इन केस देयर इज ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो नाउ वी हैव डिस्कस्ड first method, time basis. Now we will do second method. Second method is sales basis or turnover basis. Under this method, we will calculate the percentage of profit up to the date of death on the basis of sales take place during that period. अब पिछली बैलेंस शीट से उसकी डेथ तक सेल का जो डाटा है वो हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि जितनी सेल हुई है वो तो रिकॉर्ड है. प्रॉफिट is calculated at the end of the year when books are closed. तो हम लास्ट ईयर में जो प्रॉफिट था और सेल्स थी उसके डाटा से हम परसेंटेज निकाल लें. भाई लास्ट ईयर का प्रॉफिट टोटल सेल का कितने परसेंट था, उसी परसेंटेज से हम इस साल की सेल्स में प्रॉफिट निकाल लें. मान लीजिए लास्ट ईयर थी सेल्स 10 लाख, प्रॉफिट था 2 लाख, तो 20% था. अब डेथ तक की जो सेल है वो डाटा हमारे पास है, तो उसका 20% निकाल लो. दैट विल बी द प्रॉफिट ऑफ फर्म अप टू द डेट ऑफ डेथ. तो इन दिस वे यू कैलकुलेट द डिसीज पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और टर्नओवर. तो सी वन मोर क्वेश्चन. इट इज इलस्ट्रेशन 60, पेज नंबर 5.76. ओपन इलस 60. सारा, सीता एंड मीना, 3 पार्टनर्स. सारा, सीता एंड मीना were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. This is the profit sharing ratio. Sara died, first partner, on 30th June 17. सारा की डेथ होगी.
whereas the firm closes its books on 31st March every year. 31st मार्च को बुक्स क्लोज करती है, 3 months के बाद डेथ हुई. According to the partnership deed, Sarah's representative would be entitled to get share in interim profits of the firm calculated on sales basis. तो जो वो उसका प्रॉफिट का शेयर निकालना है वो सेल्स बेसिस पर निकालना है. सेल्स एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016-17. 2016-17 जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था उसमें सेल्स गिवन है और प्रॉफिट्स गिवन है. तो सेल्स थी 6 लाख और लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 1,80,000. ये लास्ट ईयर का था. एंड सेल्स इन 2017-18 टिल द डेट ऑफ हर डेथ. अब जो 2017-18 अप टू डेथ दैट इज 1,20,000, 1,20,000. You are required to calculate Sarah's share of interim profit and pass the necessary journal entry for giving Sarah her share of interim profit. So first of all, calculate the percentage of profit on the basis of sales. Percentage of profit. Last year's profit था 1,80,000 और सेल्स थी 6 लाख. तो हाउ मच परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100. 30%, दैट इज 30%. तो लास्ट ईयर फर्म ने सेल्स पर 30% प्रॉफिट अर्न किया. अब डेथ तक की सेल ही है तो प्रॉफिट विल बी 30% ऑफ दिस. तो प्रॉफिट अप टू साराज डेथ, that is sales is 1,20,000 into 30 upon 100, that will be 36,000. So this is the profit of the firm. So you will calculate Sarah's share. Sarah's share 36,000 into Sarah's share is 2/5. तो इंटू 2/5. $7,200 into 2, 14,400. This is the share of Sarah. So, past journal entries in this question, profit sharing ratio is not changed. क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो रिमेनिंग पार्टनर सीता एंड मीना विल डिस्ट्रीब्यूट इन 2 1. तो एंट्री फॉर प्रॉफिट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट. टू साराज कैपिटल डिसीज पार्टनर, टू साराज कैपिटल अकाउंट. अमाउंट इज 14,400. Okay, so in this way you will calculate deceased partner share on the basis of time and on the basis of sales. So both the methods we have discussed. Apart from this, different questions are given in the book, so that portion is deleted from the syllabus. So you are not required to do these questions, only these 2 questions. When you are to calculate the deceased partner share, you are to do. Remaining portion is deleted from the syllabus now. Okay, this chapter is over now. In next video we will start 5th chapter, that is dissolution of partnership firm. Till then, goodbye students, have a nice day.